On behalf of the defense services, we have decided to express our gratitude to all the Corona warriors, every person who has been involved in providing support to our nation and to its people, in ensuring that all of us remain safe and we are able to overcome this problem in the days ahead. We have seen the manner in which the medical professionals have toiled day in and day out to ensure that all those affected by this virus recover in the fastest time frame. Along with them, the nurses, the other people from the medical profession, sanitation workers, our police personnel, standing beside them, personnel from the home guards, delivery boys who have been delivering essential commodities in the homes of the people. And of course, we cannot forget the media which has been reaching out to our population with the message that has emanated from our government from time to time on how to carry on with our life during these difficult times. We are indeed very grateful to all the Corona warriors who have ensured that we are going past this phase in a very deliberate manner. We also cannot forget the people of our nation who have very strictly adhered to all the guidelines that were issued by the government from time to time, whether it was on social distancing, wearing of masks, ensuring proper hygiene and sanitation at all times. And of course, when the government gave the call, whether it was through the ringing of bells or through lighting our houses at night, the nation stood together. I mean, our nation has shown the resilience to overcome such crisis by staying together. And as you can see, the motto that is written behind, frontline warriors today salute the Corona warriors, and we are sure we will win together. In our country, everybody understands that when it comes to the nation, we need to work together. On behalf of the security forces, we therefore want to really express our gratitude to the Corona warriors. And in doing so, on the 3rd of May, that is on Sunday, there are some special activities that the nation will get to witness from all the three services. The Air Force will be conducting flypasts from Srinagar to Thiruvananthapuram. You will see other flypasts happening from the east in Dibrugarh, right across. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 हफ्ते के लिए और बढ़ेगा लॉकडाउन, लेकिन ग्रीन जोन वालों के लिए राहत की खबर है कि वहां पर गतिविधियों के लिए इजाजत है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी यहां पर
रेड जोन और ऑरेंज जोन को कंटेन करने की है। रेड जोन में सीमित तरीके से खुलेगा लॉकडाउन। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अहम बैठक रही थी जिसका हिस्सा थे सीडीएस, और उस बैठक का हिस्सा होने के बाद अब जब रूबरू हुए हैं वो मीडिया के सामने, तो ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने इस अहम बात का जिक्र किया। अमित कुमार मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अहम जानकारी दे रहे थे सीडीएस बिपिन रावत, और जाहिर सी बात है लगातार यही सवाल किए जा रहे थे कि रेड जोन में हो सकता है आने वाले वक्त में उसे सेना के सुपुर्द किया जाए या सेना को बड़ी जिम्मेदारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दी जाए। क्या इस बाबत भी कोई खबर, कोई संकेत? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जो 4 तारीख से 2 हफ्ते के लिए बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तमाम चीजों में छूट दी गई है। जो ग्रीन जोन बांटा गया है, ग्रीन जोन में लगभग हर एक्टिविटीज को छूट दे दी गई है। वहां पर बस भी चलेंगे, कैब भी चलेंगे। बस में 50% पैसेंजर के साथ जो कैब होगा, जो ओला उबर हो वो भी चल सकते हैं, जहां पर पेशेंट हो, ड्राइवर के साथ 2 लोग चलेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि दुकानें जो है वो दुकानें भी खुलेंगी और साथ में लिकर शॉप भी खुलेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान जो इंटर स्टेट बस सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, हवाई यात्रा जो है वो नहीं हो पाएगा। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, लेकिन तमाम एक्टिविटीज में छूट दी गई है। यहाँ पर जो गाड़ियां हैं, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, उसमें ड्राइवर के साथ पीछे 2 लोग बैठ सकते हैं। जो मोटरसाइकिल होगी उसमें सिंगल आदमी को बैठने की इजाजत है। तो तमाम छूट, अगर आप कह सकते हैं कि 4 तारीख से जो लॉकडाउन 3 जो होगा उसमें तमाम छूट गृह मंत्रालय का जो नया गाइडलाइन आया है उसमें दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर छूट की बात सामने आ रही है, लेकिन ये बड़ी बात कहने के लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत का सामने आना, अमित, ये क्या इशारा दे रहा है? नहीं, देखिए, ये तो सरकार तय करती है कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन मैं जो जानकारी है कि अब किसके जरिए क्या करना है, ये सरकार को तय करना होता है कि इन्फॉर्मेशन किसको देना। लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर ये है कि सरकार ने ये तय किया है कि 2 हफ्ते बढ़ाएगी। लेकिन इसमें एक खास चीज है, जो रेड जोन है, जो 130 जिले हैं, वहां पर भी एक्टिविटीज की इजाजत दी गई है। वहां पर भी तमाम चीजों के लिए कहा गया है कि वहां पर वो होंगे। आप जैसे कि अगर आप रेड जोन की बात करें तो रेड जोन में भी जो मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स को इजाजत दी गई है। जैसे गाड़ियां जो होंगी उसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। ये रेड जोन क्या है? रेड जोन में जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो होता है उसमें भी काम धंधा हो सकता है, काम किया जा सकता है। तो रेड जोन में जिसमें पहले पूरी तरह से बंदी थी, एक तरह से कोई भी एक्टिविटीज नहीं था, उसको भी खोल दिया गया है। जी अमित, और क्या क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि आपने सारी जानकारी दे दी है, तो मैं चाहूंगी कि उसी को एक बार फिर से आप बताएं ताकि जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो समझ पाए कि क्या हो रहा है। 2 हफ्ते और एक्सटेंड होगा, उसमें कहां पर क्या रियायत? देखिए, ग्रामीण, सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण इलाके में सभी जो इंडस्ट्री के काम हो रहे हैं वो होगा, पहली बात। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन के बाद जो है शहर में रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, लेकिन ग्रामीण इलाके में सभी कंस्ट्रक्शन के काम होंगे। जो बात है बाजार की बात अगर आप करें तो जो तमाम जो बाजार हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल है, हवाई यात्रा है, रेलगाड़ियां जो है, इंटर स्टेट बस सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारे देश भर में बंद रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो कई ऐसी चीजें हैं जो जोन वाइज बांटा गया है, जैसे रेड जोन बांटा गया है, ग्रीन जोन बांटा गया है और ऑरेंज जोन। तो और ग्रीन जोन में बसेस भी चलाए जाएंगे। जो इलाके ग्रीन जोन में है या जो डिस्ट्रिक्ट है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट गाड़ियां चलेंगी, बस चलेंगी। बस को परमिशन दिया गया है जो ग्रीन जोन के इलाके में कि 50% पैसेंजर के साथ ग्रीन जोन में बस चल सकते हैं। कैब्स, जो कि प्राइवेट कैब्स हैं, ओला या उबर, उनको भी इजाजत दी गई है कि वो भी चल सकते हैं। जैसे एक ड्राइवर होगा और उनके पीछे एक ही बैठेंगे। पहले आमतौर पे आप देखते थे कि एक साथ 2 या 3 पैसेंजर होता था प्राइवेट गाड़ियों में, तो उसकी इजाजत नहीं दी गई है। सिर्फ एक गाड़ी में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर होगा। तो ये एक कहा गया है। इसके अलावा कहा गया है कि जो ग्रीन जोन होगा वहां पर सारे काम, ग्रामीण इलाके में सभी काम होंगे, वहां पर सारी चीजें होंगी। लिकर शॉप को खोल दिया गया है, हालांकि रेस्टोरेंट और बार जो है वो बंद रहेंगे। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज थी वो अभी तक SEZ और उसके अंदर ही रखा गया था, जो 4 सेक्शन में बांटा गया था, यू और इंडस्ट्रियल टाउन। इसके बाहर भी अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो तमाम चीजों को खोल दिया गया है।
2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जो कंटेनमेंट एरिया है, जो अगर आप कह सकते हैं हॉटस्पॉट है, उसके अलावा बाहरी सभी जगहों में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जगह दी गई है, बहुत ज्यादा खोला गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। जो ग्रीन इलाके में ग्रीन जोन है, वहां पे दुकानें जो होती है वो दुकानें तक को खोल दिया गया है। हालांकि रेड जोन में बार्बर शॉप वगैरह को नहीं खोला गया। तो इस तरह की पूरा गाइडलाइन है एमएचए की तरफ से जारी किया गया है, जो 4 तारीख से लागू होगा। और सबसे बड़ी बात की 4 तारीख से 2 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लॉकडाउन पर सबसे बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर आप देख पा रहे हैं। सिर्फ न्यूज 24 पर लॉकडाउन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, एक ऐसे वक्त पर जब लॉकडाउन 2.0 3 मई को खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यही सवाल पूरा देश जानना चाहता था, जिसका जवाब वो हम आपको दे रहे हैं। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं सिर्फ न्यूज 24 पर। लॉकडाउन पर सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से आज अहम बैठक हो रही थी मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ, सीडीएस के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि फिलहाल 2 हफ्ते के लिए और बढ़ेगा लॉकडाउन। लेकिन अहम बात यह है कि रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जी हां, छूट भी मिलेगी। अगर हम ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन में हालात सामान्य होंगे, लेकिन रेड और ऑरेंज जोन पर कंटेनमेंट जोन की ही तरह सख्ती लागू की जाएगी। और किस तरह की सेवाएं होंगी, किन किन पर असर पड़ेगा, किस तरीके से यातायात जो है वो बहाल करने की कोशिश की जाएगी, ये तमाम पहलू पर लगातार एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं न्यूज 24 के एसोसिएट एडिटर अमित कुमार। हाँ अमित, मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। अमित, बहुत अहम बात आपने बताई है, लेकिन आज जो बैठक हुई थी उसमें ट्रेनों को लेकर और एयर स्पेस को लेकर, हवाई यातायात को लेकर भी चर्चा हुई थी। उस मोर्चे पर क्या है तैयारी? एक ऐसे वक्त पर मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ जब हम चर्चा कर रहे थे एग्जिट प्लान को लेकर, लेकिन 2 हफ्ते बढ़ाने की एक्सक्लूसिव जानकारी आप दे रहे हैं लॉकडाउन को। देखिए, बढ़ा दिया गया, लेकिन साथ में छूट दी गई है। जो अभी कुछ ही जो श्रमिक है उनके लिए एक ट्रेन स्पेशल चलाया गया है, लेकिन आम आदमी के लिए ट्रेन नहीं चलेगी। फिलहाल कोई ट्रेन और हवाई इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। साफ तौर पे इंटर स्टेट बस सर्विसेज को भी एक तरह से मना कर दिया गया है कि वो भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो जैसे कि बस सर्विसेज जो इंटर स्टेट, खास करके ग्रीन जोन में बस चलने की बात है 50% कैपेसिटी के साथ। एक और इसमें एक चीज है, जो फिजिकल एक्टिविटीज है, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो रात को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सारी चीजें बंद रहेगी। मैं आमतौर पे कई बार आप देख रहे होंगे कि इस दौरान एसेंशियल सर्विसेज की दुकान भी जो है वो रात को 7 बजे के बाद भी खुली होती थी। तो एसेंशियल एक्टिविटीज जो है या दुकानें जो है वो शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी। 4 कैटेगरी बांटा गया है लोगों का, जैसे कि 75 प्लस के जो बुजुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, चिल्ड्रन है, ऐसे लोग को घर पर ही रहना पड़ेगा। एक और बड़ी चीज है कि ओपीडी और क्लिनिक खुल जाएंगे। ओपीडी और क्लिनिक को खोला जाएगा तमाम जो जगह में ग्रीन जोन में है। ओपीडी की भी ये सरकार को इस बात की भी चिंता है कि ऐसे लोगों को परेशानी ना हो जो जिनको कोविड के अलावा दूसरे भी इलाज करा रहे हैं। तो ये बड़ी एक चीज है कि उसमें रोका गया है। ऑरेंज जोन में इंटर स्टेट और सब सारी बस तो बंद रहेगी। कैब सर्विसेज शुरू करने की बात है ऑरेंज और ग्रीन जोन में, प्राइवेट कैब जोन जैसे ओला उबर। तो इस तरह की कई छूट दी गई है, जिसके साथ ही आप कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन 3 होगा वो लॉकडाउन 2 से एकदम अलग होगा। जो सर्विसेज हैं, जैसे जो पुरानी इंडस्ट्री एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर की कई चीजें थी, जो काम धंधे थे वो तो चलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसी चीजों को छोड़ दिया गया है जो कि लॉकडाउन 3 में एकदम नया होगा। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए मेरे साथ, बातचीत जारी रहेगी। इस बीच संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए। संजीव, माना यही जा रहा था कि शाम 4 बजे की बैठक बेहद निर्णायक साबित हो सकती है और हुआ भी ठीक वैसा ही। उसके बाद ले लिया गया ये बड़ा और अहम फैसला। क्या कोरोना के हर दिन बढ़ते मरीजों की तादाद के बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है? कविता, देखिए, लॉकडाउन जारी रहेगा या कितना जारी रहेगा या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इस पर स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। जो 3 जोन्स में पूरे देश को डिवाइड किया गया था उसमें तय कर दिया गया है कि 319 जिले जो ग्रीन जोन में आते हैं उसमें बहुत सी सेवाएं 3 महीने के बाद शुरू होने जा रही है। लेकिन लॉकडाउन खत्म नहीं होने जा रहा है उन इलाकों में जो रेड जोन है
और जो ऑरेंज जोन में आते हैं। 130 जिले अभी भी रेड जोन में आते हैं और जाहिर है कि वहां पर लॉकडाउन अगले 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 17 तारीख तक जो पहले स्थिति थी वो अभी स्थिति रहेगी, यानी कि जो रेड जोन और ऑरेंज जोन है वहां लॉकडाउन 3, लेकिन जो ग्रीन जोन है जिसमें कि 319 जिले देश के आते हैं वहां सुविधाएं खुलनी शुरू हो जाएंगी। और एक एक करके शुरुआत जो की गई है उसमें आपको हम बताते चले कि फिलहाल ट्रांसपोर्ट सर्विस, सबसे बड़ी बात, जो बस हैं ग्रीन जोन में वो आराम से चल पाएंगी, ग्रीन जोन के भीतर चल पाएंगी, ग्रीन जोन से बाहर भी जा पाएंगी, लेकिन वहां मॉल्स, सिनेमाघर, स्कूल ये सब नहीं खुलेगा, वहां ये अभी भी बंद ही रहेगा। ग्रीन जोन में भी बंदी जो है वो चालू रहेगी। जो ट्रेन सर्विस है उसे अभी भी रोका हुआ है। इसके अलावा आपको हम बताते चले कि जो रेल सेवाएं हैं वो भी रुकी रहेंगी, यानी कि आंशिक रूप से ग्रीन जोन में सुविधाओं को शुरू तो किया जा रहा है, लेकिन लिमिटेड सुविधाएं होंगी, पर ग्रीन जोन में थोड़ी राहत मिलने जा रही है। पर रहा सवाल ऑरेंज जोन और रेड जोन का, तो वहां अगले 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगा रहेगा। कविता। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी संजीव आपने दी और ये जानकारी बेहद जरूरी है क्योंकि लगातार जिस तरीके से आज भी हम आंकड़े बता रहे थे 35,000 के पार पहुंच चुके हैं कोरोना संक्रमितों की तादाद। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी। और जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें कि जो लिस्ट तैयार की गई है उसके मुताबिक 130 जिले रेड जोन में आते हैं, 284 ऑरेंज जोन में आते हैं और 319 जिले, जैसा कि संजीव बता रहे थे, ये ग्रीन जोन में। ये वो जोन है जिसको लेकर अब पैमाने भी बदले हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि ग्रीन जोन वो जोन है जहां पर 28 दिन से कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है, अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन। अब ग्रीन जोन वो जोन है जहां पर 21 दिन से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। नतीजा ये होगा कि ग्रीन जोन में ज्यादा जिले होंगे और होता भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। संजीव, अब अहम बात यह है कि इससे पहले 27 अप्रैल को जो मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी, क्या उस बैठक से भी कुछ सूत्र लेते हुए आज ये बड़ा फैसला लिया गया है और कड़ा फैसला लिया गया है? देखिए, जो मुख्यमंत्रियों की बैठक थी उसमें बहुत से मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि लॉकडाउन को जारी रहना चाहिए। बहुत से मुख्यमंत्रियों को लगता था कि नहीं, लॉकडाउन तो खत्म होना चाहिए, क्योंकि दरअसल लाइवलीहुड की समस्या जो है वो बड़ी बनकर के सामने आ रही है। तो एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है जिसमें जिम्मेदारी तय करने की राज्यों पर ही डाल दी गई है। आपने देखा होगा आज ही सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से वो विज्ञप्ति आई है जिसमें कि बता दिया गया है कि देश में कितने रेड जोन हैं, कितने ऑरेंज जोन है और कितने ग्रीन जोन हैं। अब कौन कौन सी एक्टिविटी किस जोन में होंगी ये भी बता दिया गया है। अब राज्य अपने हिसाब से तय कर ले कि आखिर उनके राज्यों में कितने जिले ग्रीन जोन में हैं और उस हिसाब से वो एक्टिविटीज को चालू करेंगे। कहां कहां बंद रखना है ये भी राज्य सरकारों पर है, क्योंकि रेड जोन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन हटाया नहीं गया है, वहां 2 सप्ताह बढ़ा दी गई है। तो राज्यों के ऊपर यह जिम्मेदारी डाल दी गई है। यहां आकलन के हिसाब से आपको कविता बताते चले कि ज्यादातर ग्रीन जोन जो है वो हमारे देश में उन इलाकों में है जो कि ग्रामीण इलाके हैं, यानी कि ग्रामीण इलाकों में इस आदेश का सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है। ग्रामीण इलाके आप मानकर चले कि ज्यादातर खुल जाएंगे इस आदेश के बाद। और दूसरी बात ये भी बताते चले कि ग्रीन जोन में जो बसेस चलेंगी उसके अलावा जो ओला सर्विस है, जो प्राइवेट जो टैक्सी सर्विस होती है, उसे भी इजाजत दे दी गई है कविता। लेकिन शर्त यह है कि एक ड्राइवर और पीछे में बैठेगी सवारी, बस इतना ही परमिशन दिया गया है। कुल मिलाकर के ये जो हमारे पास अब रिलीज है, ये रिलीज यही कहती है कि इस देश को 3 जोन में जो डिवाइड किया गया था उसके बाद एक गाइडलाइन ला दिया गया है। वो गाइडलाइन राज्यों तक, चीफ सेक्रेटरीज तक पहुंच जाएगा और राज्यों को तय करना है कि उनके राज्य में कितने ग्रीन जोन हैं, कितने रेड जोन हैं और कितने ऑरेंज जोन हैं, और उस हिसाब से वो लॉकडाउन को या तो जारी रखेंगे या फिर वो आंशिक राहत अपने जिलों में दे पाएंगे। कविता। बिल्कुल संजीव, आज यही बात चल भी रही थी कि लॉकडाउन खुलेगा या फिर नहीं। इसी बात का फैसला आज होना था, सरकार ने फैसला ले लिया है। चिंता भी इस बात की थी कि देश की बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है, घर पर बैठे बैठे उन तक राहत कैसे पहुंचाई जाए। राज्य केंद्र से हजारों करोड़ का पैकेज लगातार मांग रहे थे।
आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ी चुनौती के लिए केंद्र सरकार की तैयारी। लेकिन इन सबके साथ साथ देखिए, लॉकडाउन को बढ़ाना, संजीव, ये तो जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी मान रहे हैं कि सिर्फ लॉकडाउन को बढ़ाना समाधान नहीं हो सकता है। टेस्टिंग का जो दायरा है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग करनी होगी। संजीव, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कविता, सुन पा रहा हूं आपको। और ये जो रिलीज आई है हमारे पास, उसमें एक बात भी बहुत स्पष्ट है। अगर हम आकलन करें ध्यान से तो पाते हैं कि देश के ज्यादा जो महानगर है वो बंद रहेंगे। करीब करीब पूरे महानगर हमारे देश के हैं वो बंद रहेंगे, यानी कि शहरी इलाकों में अभी भी बंदी रहेगी। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि शहरी इलाकों में बंदी को आमतौर पर कायम रखा गया है और कुछ न कुछ थोड़ी बहुत छूट संभव है कि उन शहरी इलाकों में मिलेगी, लेकिन ज्यादातर शहरी इलाकों में बंदी कायम रहेगी। यानी कि वो जो 2 सप्ताह का लॉकडाउन का एक्सटेंशन है उसका सबसे ज्यादा असर शहरी इलाकों पर पड़ने जा रहा है। ग्रामीण इलाकों पर रिलेटिवली कम असर होगा और ग्रामीण इलाके खुलते हुए आपको नजर आ सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि जो फैलाव हुआ है वो देश के कुछ चुनिंदा शहरों को अगर ले लें तो वहां सबसे ज्यादा हुआ है। 6 से लेकर के 8 शहर ऐसे हैं जिनको मिला ले तो ज्यादातर केसेस आ जाते हैं। तो उसी हिसाब से यह तय कर दिया गया है कि अधिकतर ग्रीन जोन वो ग्रामीण इलाकों में, और जो रेड जोन्स हैं देश के 319 जिले जो हैं वो ज्यादातर शहरों में होंगे। यानी कि जितने शहरी इलाके हैं उनके लिए फिलहाल राहत नहीं है। अब जैसे दिल्ली में कहीं कोई राहत नहीं है, गाजियाबाद ऑरेंज जोन में आता है लेकिन फरीदाबाद में नहीं है। एनसीआर में भी आप मानकर चले ज्यादातर जो है वो ग्रीन जोन नहीं है, लेकिन उसके आगे आपको ग्रीन जोन मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जो खोलने का सिलसिला शुरू हुआ है देश को लॉकडाउन के बाद, उसमें ग्रामीण इलाकों से खुलना शुरू होगा। रेल अभी भी नहीं चलाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट सर्विस अभी भी नहीं चलाई जाएगी ग्रीन जोन को छोड़ करके। स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे, मॉल्स बंद रहेंगे, सिनेमा थिएटर्स बंद रहेंगे। फिलहाल लॉकडाउन 17 मई तक जो ग्रीन जोन नहीं है बिल्कुल संजीव, यही तो न्यूज़ 24 लगातार कह रहा था। हम लोग हैं तो कोरोना कहां तक डाउन है यही तो समझना चाहता है देश, लेकिन फिलहाल 2 हफ्ते और एक्सटेंड करने की बात हो रही है। अमित कुमार मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? सबसे बड़ी बात की जो रेड जोन को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि वहाँ पर क्या क्या है। रेड जोन की मैं बता दूं कि रेड जोन में आउटसाइड रेड जोन को भी ना 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक कंटेनमेंट जोन जो कि जहाँ पर सीधे सीधे पाया गया है जो कि कोरोना पेशेंट, जो कंटेनमेंट जोन एकदम हॉटस्पॉट माना गया है, तो वो कंटेनमेंट जोन पे जो है वो तमाम चीजें बंद रहेंगी जो कि पहले दिया। इसके अलावा जो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, तमाम चीजें कुछ भी नहीं चलेंगी। लेकिन इस रेड जोन के इलाके को में भी कई एक्टिविटीज को दिया गया है जो छूट दी गई है। छूट इस हिसाब से है कि इंडिविजुअल व्हीकल को अलाउ किया गया है जिसमें एक 2 होंगे पैसेंजर, ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर होंगे जो बाइक को चलाने दिया गया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अर्बन एरिया में, जो अर्बन एरिया का जो रेड जोन एरिया होगा वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप, पहले सिर्फ इन 4 कैटेगरीज में ही इजाजत दी गई थी। यहाँ पर अब रेड जोन इलाकों में यहाँ पर भी थोड़ी छूट दी गई है, जैसे कि एसेंशियल मैन्युफैक्चरिंग हुई, एसेंशियल गुड्स की जो अगर है इंक्लूडिंग ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, तो ऐसे प्रोडक्शन को रेड जोन इलाके में भी इजाजत दी गई है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि रेड जोन में, क्योंकि आमतौर पर इससे पहले क्या था कि रेड जोन मतलब कंप्लीटली रेड जोन, वहां पर कहीं पर भी कोई छूट नहीं थी। लेकिन इस बार रेड जोन में तमाम चीजों में छूट दी गई है, लोगों के मूवमेंट से लेकर रिस्ट्रिक्शंस के साथ मूवमेंट को लेकर के अलावा इंडस्ट्री तक को छूट दी गई है। ग्रीन जोन में एक मेजर बदलाव है। अगर आप कहें तो ग्रीन जोन में बाजार भले ना खुला हो, मॉल और वो जो रेस्टोरेंट और बार बंद है, लेकिन दुकानें जो है उसको खोलने की बात कही गई है। पहले सिर्फ एसेंशियल सर्विस की दुकानों को खोलने की बात थी, लेकिन एसेंशियल के साथ नॉन एसेंशियल दुकानों को भी खोलने की बात इजाजत दी गई है, जो कि एक बड़ी बात है। इसके अलावा जो देखें तो बाजार के अलावा भीड़भाड़ के मॉल और सिनेमा तो बंद रहेंगे, मेट्रो बस बंद रहेंगे, लेकिन जो बस है, अगर जो ग्रीन जोन है वहां पर बस चलेगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आम पब्लिक का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलेगा विद 50% कैपेसिटी। मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ी बात है कि लॉकडाउन 3 बहुत सारे रियायतों के साथ, छूट के साथ सामने है।
बिल्कुल एहतियात के साथ, रियायत के साथ। अमिताभ बने रहिए मेरे साथ, एक बार फिर से रुख करेंगे। संजीव त्रिवेदी लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, ये बेहद जरूरी था। देखिए, रिलैक्सेशन की बात हो रही है, रेड जोन में भी रियायत, और ये बेहद जरूरी है क्योंकि लगातार देश की सरकार के सामने यही चुनौती है कि आर्थिक मोर्चे पर भारत की स्थिति को, आर्थिक तंदुरुस्ती को भी किस तरीके से मेंटेन किया जाए। इसलिए ये रियायत जरूरी थी और उस मोर्चे पर भी काम होता हुआ नजर आया। कविता, देखिए, जाहिर है कि जो सरकार की मंशा है वो दरअसल देश की अर्थव्यवस्था का जो पहिया है उसे फिर से घुमाने की है और एक आम जिंदगी की तरफ हम वापस जा सके उसको करने की है। लेकिन उसके लिए एक ग्रेडेड रिस्पांस, धीरे धीरे बहुत तेजी से हम उस तरफ न बढ़ें, इस बात की व्यवस्था की गई है। अब जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, बहुत साफ कह दिया गया है कि जहां तक ग्रामीण इलाके हैं वहां आपको मनरेगा हो, उसका काम सुचारू रूप से चल सकता है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ईंट भट्टे का काम, यह सब सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन बात अगर हम शहरों की करें, अगर हम शहरों की तरफ आते हैं तो कह दिया गया है कि 33% कर्मचारियों के साथ ही सरकारी दफ्तर काम कर पाएंगे। 33% कर्मचारियों के साथ ही सरकारी दफ्तर काम करेंगे। हालांकि ये कहा गया है कि जहां तक सवाल पुलिस का है, होमगार्ड्स का है, सिविल डिफेंस का है, वो और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का है, तो इनका जो स्टाफ है वो टोटल फुल 100% स्टाफ स्ट्रेंथ के साथ काम करेगा। लेकिन बाकी के दफ्तर 33% स्टाफ के साथ ही काम करेंगे, पहली बात। अब रहा सवाल कि प्राइवेट दफ्तरों का क्या है, तो प्राइवेट दफ्तरों के लिए कहा गया है कि अधिकतम जो अभी बंद है 33% के साथ काम कर सकेंगे। कविता, बिल्कुल संजीव, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को फिर से दे दे। लॉकडाउन पर अभी तक की ये सबसे बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले आपको हमने दिखाई है। सबसे पहले न्यूज 24 ने आपको बताया कि लॉकडाउन 3.0 की पूरी तैयारी हो गई है। 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है लॉकडाउन। 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आ चुका है। प्रधानमंत्री ने आज बैठक की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है आदेश। संजीव, इस बैठक में मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत का होना क्या संकेत देता है? क्या इन 2 हफ्तों में आर्मी को भी किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है, खासतौर पर रेड जोन में? संजीव, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ संजीव, सुन पा रहा हूँ आपको। कविता, अगर कुछ और जानकारियों की हम बात कर लें तो हम पाते हैं कि जहां तक बसों के परिचालन का सवाल है, बसों के परिचालन में बड़ा स्पष्ट कह दिया गया है कि उन्हें 50% स्ट्रेंथ के साथ ही चलाया जा सकेगा। ये बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि बसें जो हैं वो 50% जो उनकी कैपेसिटी होती है उसके अनुसार ही चलेंगी और जो बस डिपो हैं वहाँ 50% ही कार्य करेंगे। अब रहा सवाल ये कि आखिरकार सरकार रेड जोन में एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल करेगी, क्या फौज की जरूरत पड़ेगी, क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, इस तरह की कोई बात अभी तो साफ नहीं की गई है। कविता, ये फिलहाल कम से कम इस रिलीज में जो सरकार की तरफ से अभी आया है कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कर दिया गया है कि रेड जोन में वो तमाम बंदिशें कायम रहेंगी जो पहले की तरह। वही दुकान खुलेंगी जो स्टैंड अलोन थी, वही जो कि रेजिडेंशियल इलाके में थी, जो अकेले हैं और जो ज़रूरतें पूरा करती हैं आम लोगों की, वैसी ही दुकानें खुल पाएंगी और जो स्ट्रिक्टनेस है खासतौर पर रेड जोन में वो वैसे ही कायम रहेगा। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि एक ग्रेडेड अप्रोच जो अपनाया गया है कविता, वो इसमें परिलक्षित होता है और ये सलाह भी था, चाहे वो इंडस्ट्री बॉडी हो, चाहे फिर वो एनजीओ हो या फिर वो लोग जो कि काम कर रहे थे फ्रंटलाइन पर, उन सबों का सलाह यही था कि हम देश की अर्थव्यवस्था को खोलें, सामाजिक स्तर पर देश को खोलें, तो वो इस तरह से हम खोलें कि एक बार में पूरा देश नहीं खोल दें। और उस बात को बड़ा ध्यान से आज पूरे देश को जब 3 जोन में डिवाइड किया गया तो वो दिखने भी लगा था और अब एक डिटेल्ड गाइडलाइन के साथ तय कर दिया गया है कि कहां खुल सकता है देश, कहां कुछ कम खुल सकता है और कहां बिल्कुल नहीं खुल सकता है। रेड जोन में पहले की तरह ही, यानी कि जो स्थिति 24 मार्च की रात में थी, रेड जोन में कमोबेश वही स्थिति कायम रहेगी। ग्रीन जोन से देश खुलना शुरू हो रहा है, ट्रेन नहीं चलेंगी, बसें बहुत रुक कर चलेंगी। हाँ, ये जरूर है कि रेड जोन के लोग जिन्हें बहुत जरूरी है किसी काम के लिए उन्हें जाना है तो उन्हें परमिशन दिया जाएगा, लेकिन रेड जोन में लॉकडाउन अगले 17 तारीख तक लगा रहेगा। कविता,
बिल्कुल, कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 35,000 हो गई। कल से आज के बीच में लगातार मैराथन बैठकें और बैठकों के बाद जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया वो ये कि कर लीजिए लॉकडाउन 3.0 की तैयारी, क्योंकि देश ने कर ली है, सरकार ने कर ली है। बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से अब निर्देश भी आ गया है कि अब 2 हफ्ते के लिए